I am reading from the next question. Again, it's from Revelations 5. अब मैं अगला सवाल पढ़ रहा हूँ, फिर से वो प्रकाश वाक्य 5 से है। In Revelations 5, the Lamb opened the book. प्रकाश वाक्य 5 में मेमने ने पुस्तक को खोला। And it says it was a bloody lamb. और वो कहता है कि वो लहू लहान मेमना था। Who opened the book? Yes. जिसने पुस्तक को खोला। My question is, मेरा सवाल ये है that did Jesus open the book in his corporal body? कि क्या यीशु ने अपनी पुस्तक को उस शारीरिक देह में खोला? No, brother. नहीं मेरे भाई। Or was it the theophany या ये वो थियोफनी थी which opened the book? जिसने उस पुस्तक को खोला। Exactly right. बिल्कुल सही बात है। As in Revelations 10, जैसे कि प्रकाश वाक्य 10 में he came in a theophany as a mighty angel. वो थियोफनी में एक बलि स्वर्गदूत बन के आए। Because theophany doesn't bleed. क्योंकि थियोफनी में लहू नहीं होता। God bless you. खुदावन आपको आशीष दे। And that's why you asked this question. और इसलिए आपने सवाल पूछा है। I want to understand in which form did he open the book? मैं समझना चाहता हूँ किस रूप में उन्होंने पुस्तक को खोला। What confuses you, brother, is because you have understood that theophany doesn't bleed. जिस बात से आप कंफ्यूज हो रहे हैं मेरे भाई, वो ये है कि आपने ये समझ लिया है कि थियोफनियों में खून नहीं होता। First of all, understand. पहली बात ये समझिए। मैं ये नहीं कह रहा थियोफनी में खून नहीं होता है. I'm trying to say something else, brother. Okay. First of all, try to understand. पहली बात ये समझने की कोशिश करिए। It was not a literal lamb. ये एक वास्तविक मेमना नहीं था। And Brother Branham cleared it in the message preach. और भाई ब्रैनम ने बिल्कुल स्पष्ट किया इसको फासले वाले संदेश में। When John is caught up in a vision here, जब यूहन्ना यहाँ पर एक दर्शन में उठाया जा रहा है, he is seeing symbols. वो चिन्हों को देख रहा है। So he was not seeing a literal lamb. तो वो वास्तविक मेमने को नहीं देख रहा था। Amen. That was only a symbol. वो एक केवल चिन्ह था। So that bleeding lamb was a symbol of somebody else. तो वो लहूलुहान मेमना एक चिन्ह था, एक प्रतीक था किसी और चीज का। Of someone who was slain. किसी का जो कि घात किया गया था 2000 years back. 2000 साल पहले। But now, परंतु अब he saw that bleeding lamb. उसने उस लहूलुहान मेमने को देखा। Now here comes a problem. अब यहाँ पर आती है समस्या। Which bleeding lamb? कौन सा लहूलुहान मेमना? The lamb which was bleeding since the foundation of the world. Amen. वो मेमना जो लहूलुहानित है जगत की नींव रखने से पहले। Now answer my question. अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। The prophet also said, नबी ने ये भी कहा, before the foundation of the world he slew a lamb and by his blood wrote your name. जगत की नींव रखने से पहले उसने एक मेमने को घात किया और उसके लहू से आपके नाम को लिखा। What kind of blood was that before the foundation of the world? किस किस्म का लहू वो था जगत की नींव रखने से पहले? Because it had not yet become flesh. क्योंकि वो अभी तक के शरीर में नहीं आया था। I have preached on that in one 3 days meeting. मैंने इसका प्रचार किया है 3 दिन की सभाओं में। What was that blood? क्या था वो लहू? The word became blood. वचन ही लहू बन गया। So when he's seeing a bleeding lamb, तो जब वो एक लहूलुहानित मेमने को देख रहा है, he's seeing a crucified word. वो एक क्रूस पे चढ़ाए हुए वचन को देख रहा है। That blood is not a literal blood, brother. वो लहू वास्तविक लहू नहीं है। It is a symbol वो एक चिन्ह है, प्रतीक है of a word that was killed. उस वचन का जो घात किया गया है। I hope you're getting it. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। That's why it is now very simple to say. इसलिए बड़ा साधारण है ये कहना। What he saw was a theophany. जो उसने देखा वो एक थियोफनी था। That's right. ये बात ठीक है। A theophany, does it bleed? क्या थियोफनी में लहू होता है? Not in that sense. उस मायने में नहीं। But what was this theophany which was bleeding? पर ये थियोफनी कौन सी है जो कि लहू, उसमें से लहू बह रहा है? It was that word which was killed. ये वो वचन था जो मारा गया। And that blood is symbolic. और वो लहू जो उसमें से बह रहा है वो एक चिन्ह की भाषा है। Which is the word itself. जो कि स्वयं वचन ही है। Which was killed. जो कि घात किया गया था। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे। God bless you. खुदावन आपको आशीष दे। So it was a theophany which broke the book. I mean seals. तो ये थियोफनी था जिसने पुस्तक को खोला अर्थात मोहरों को तोड़ा। Where is the altar of sacrifice? वो कुर्बानी का वेदी कहाँ है? Where is the natural body that died? वो प्राकृतिक देह जो है वो कहाँ है जो मरी? It was laying on the brazen altar. ये पीतल की वेदी पे रखी हुई है। Where was the lamb when he was opening the book? मेमना कहाँ था जब वो पुस्तक को खोल रहा था? Not at the brazen altar. पीतल की वेदी पे नहीं। He was at the throne. वो तो सिंहासन पे था। Which is the holiest of holies. जो कि परम पवित्र स्थान है।
The natural body was laying there. अब प्राकृतिक देह तो वहां पड़ी हुई है। The theophany came out. थियोफनी बाहर आई, That logos came out. वो लोगोस सामने आया And it was symbolized as a bleeding lamb. और उसको एक चिन्हात्मक रूप में प्रकट किया गया, एक लहूलुहानित मेमने के रूप में, As the one who had given the sacrifice. जैसे मानो ये वो मानो तो नहीं कहेंगे, परंतु ये वो शख्स है जिसने उस कुर्बानी को दिया था। The word was killed. जो वचन है वो घात किया गया है। I hope you're getting it. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। That bleeding word came and opened the book. उस लहूलुहानित वचन ने आके उस पुस्तक को खोला है। I think that makes it clear. मैं आशा करता हूं इस बात से स्पष्ट हो जाएगा। There's no doubt on that. इस पे कोई शक नहीं है।